Hello, everybody. How are you doing? Good evening. Good evening, Ji. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, Mohini. Good evening, ma'am. Good evening, Ji. Good evening. Good evening, everybody. Nandini. ಫಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ Good evening, ma'am. ನೀವು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ कन्नड़ा नंदिनी जी कन्नड़ा बात कर रही है. Okay. So let's start the topic: shielding and protecting yourself from बेसिकली प्रोटेक्शन या शील्डिंग में मेजरली हम लोग क्यों फोकस करते हैं, क्योंकि मेरे बहुत स्टूडेंट्स ने ये सेशन ऑर्गेनाइज करने को बोला है, यही कुछ लोग हैं. सो मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से कि शील्डिंग या प्रोटेक्शन की डिमांड क्यों कर रहे थे आप? बोल सकते हो? sometimes we will feel that somebody has done something, some black magic or some evil energies, entities are around us. So we always trouble you to teach us some shielding, ma'am. Protection. I'm sorry because I'm traveling and it is dark. I did not switch on my video. Okay. That's okay. I understood. वरना आप तो हमेशा कर लेते हो. I know. कुछ तो है इसीलिए आपने वीडियो ऑन नहीं किया. Yes, I know about my students. Yes. So Yes, yes, truly said. So protection. Actually, क्या है ना? Let me put you this way. Let me introduce you to why we need protection as a spiritual being. Okay, because we all are in the spiritual path. So esoteric या कैसे भी in the olden teachings ऐसा बोला जाता है कि when you do lot of spiritual things, may it be religious also, but especially when you are into spirituality like meditations or working on your character building. What is character building? Character building is unconditional love. You should not hate anybody, or you should not lie. Be honest, and you should not steal. ऐसे सब. So these are character building. आज जो आजकल बहुत चल रहा है वैसे, बिकॉज कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, लोग वहां पे अपना मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं. नाउ दिस इज जेनरोसिटी ऑफ स्टीलिंग. Basically, you are taking others without others permission. You are taking, or I don't know, I mean इसका relevance मुझे आज तक नहीं पता चला, but still. So when you do all kind of, when you are aware and you believe in spirituality, your soul gets so much of light being बन जाते हैं हम लोग. We are light being. We all are light being. We are all are infinite soul. But उसमें जैसे मुझे ये मेडल मिला, ठीक है ना? ऐसे मेडल हमें हायर बीइंग्स आके आपको लाइट के तौर पे देते हैं कि देखो तुमने इनको हील किया, चलो एक लाइट तुम्हारे अंदर बढ़ा. तुमने आज किसी को अच्छा सा एक गाइडेंस दिया जिसकी वजह से उनका जो लाइफ है उसमें सुधार आया, चलो एक और. सो दीज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बीइंग, ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बेसिकली. जो इसके विरुद्ध जाता है उसका ऑरा उतना ही it goes towards darkness, right? Now those are called black magic, black magicians. जो darkness की तरफ जाते हैं, जो आपको I don't know how they actually do, but then yes, ऐसे ही हम सोचते हैं कि कुछ भी दे दो उनको तो वो किसी का भी जिंदगी खराब कर देते हैं, ऐसे ही कुछ होता होगा, right? So हमारे विरुद्ध हैं. वी आर व्हाट? वी आर वाइट हीलर्स और वी आर लाइट बीइंग्स. सो जब लाइट बढ़ता रहता है,
आप इतने सोल को और एलिवेट करते हो, बिकॉज आपसे कोई मिलने आता है और उसको किसी भी तरीके का कोई भी एक पॉजिटिव वाइब मिल जाता है, या आपके गाइडेंस से ही उसके जिंदगी में सुधार, कैसे भी आपने अच्छा ही खाना बनाया और वो भूखा था उस टाइम में, तब भी आपके अंदर वो लाइट बढ़ गया। ओके, सो ऐसे जब होता है तो यू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, you become more responsible towards the earth, you become more responsible to flourish this entire thing with compassionate mercy and love, you become more responsible towards your own life, आपके कमिटमेंट हो जाती है लाइफ में कि आपने ये काम करना है। फिर क्या होता है, हायर बीइंग्स आपको ठप्पा लगा देते हैं, नाउ यू आर अ हायर बीइंग के साथ काम करने वाले सोल हैं। जब ऐसे ठप्पा लग जाता है तो क्या होता है, आपके अंदर की जो रोशनी है, क्योंकि जब हम लोग देखते हैं विथ नॉर्मल फिजिकल बॉडी, बट जो एक्चुअल बीइंग्स है, जैसे हम लोग भगवान बोलते हैं या कोई एंजल बोलते हैं, उन लोगों को हम लोग कैसे दिखते हैं, लाइक अ छोटू सा लाइट। तो जब छोटू सा लाइट में और रोशनी बढ़ जाती है और बढ़ जाती है, तो दैट बिकम्स अ बिग लाइट। जब बिग लाइट बढ़ जाती है तो यू अट्रैक्ट मेनी काइंड ऑफ ब्लैक बीइंग्स ऑल्सो, व्हाइट बीइंग्स ऑल्सो। एंजल्स को भी अट्रैक्ट करते हो, डीमंस को भी अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि डीमंस कौन है, उनको भी दे आर ऑल्सो इन द सेम पाथ, बेसिकली उनको भी मोक्ष की तरफ ही जाना है, बट बेचारे भूल जाते हैं या अनकॉन्शियस हो जाता है या कुछ भी बोल लो, डेड सोल हो जाते हैं, उनको नई पाथ दिखता है, वो पाथ से कहीं और चले जाते हैं, कुछ और डिविएशन आ जाती है, बट उनको हम लोग कैसे दिखते हैं, लाइक अ बिग लाइट जिनके अंदर वो घुसना चाहते हैं। प्रॉब्लम तब आती है हमारे लाइफ में जब ऐसे नेगेटिव एलिमेंट्स हमारे अंदर, हमारे लाइफ में घुस के हमें खराब कर देते हैं हमारा लाइफ। तब क्या होता है, जॉब में ट्राई करते रहोगे, जॉब मिलेगा नहीं, कहीं जाओगे एक्सीडेंट हो जाएगा, पैसा बार बार डेट में ही, रोटेशन में ही रहेगा, शादी वो होते होते रह जाएगी, या शादी होने के बाद बार बार रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो जाएगी। नॉट ओनली शादी का रिलेशनशिप, रिलेशनशिप कैन बी एनीथिंग, आपका और मेरा भी रिलेशनशिप कैन बी विथ योर ब्रदर सिस्टर, विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर बॉस, विथ योर कलीग्स, किसी के साथ भी। सो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप ब्लॉकेज आ जाती है कि आपका कोई ना कोई ऐसा हो जाता है जिससे आपको प्रॉब्लम ही लगी रहती है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनसे रिलेशनशिप they are not very what do you call happy to go kind of people, so ऐसे problems हो जाती हैं। and ancestral healing में इस बार एक अनोखी चीज कराने वाली, वैसे तो मैं पूरा डिटेल बताऊंगी, बट it is related to health issue, like very normal gastric problem, gas problem, जो actually बहुत लोग suffer करते हैं। I know my students also, but then I know many people also, that can also come because of these kind of negative entities and elementals in your life. Okay, so in सब से protection कैसे कर सकते हो, that is all about this class, that is all about this entire journey. Okay, so let me share PPT. अगर हम एक अच्छे लाइट बीइंग होते हैं तो हमारा ऑरा ऐसे दिखता है, इट्स ह्यूज, इट्स ह्यूज, द ऑरा इज ह्यूज। कैसे, किसी आप एसोटेरिक बुक में सब लिखा है, एनी बेसेंट का, इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड यू कैन गो थ्रू, मेनी बुक्स आर देयर अवेलेबल इन अमेज़न आल्सो। सो वहां पे ऐसा लिखा है, जब बुद्धा चलते थे 7 मीटर से भी ज्यादा उनका ऑरा होता था। ओके, और 7 मीटर मतलब और भी बड़ा होता था, और जब वो चलते थे तो उनके साथ साथ जितने भी लोगों को वो ऑरा टच करता था ना, उतने लोग हील होते थे। सो दैट इज द मैजिक विच वी आर क्रिएटिंग थ्रू व्हाट, सिर्फ मेडिटेशन करके वी कांट क्रिएट दैट मैजिक,
वी हैव टू शील्ड आवरसेल्फ, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ. कहीं से एनर्जी लीकेज हो जाएगी तो ये जो ऑरा है वो कुछ और में ऐसे चेंज हो जाएगा, उसमें इतने सारे दाग धब्बे आ जाएंगे. देन यू कांट, यू नो, देन फिर आप सोचते रहोगे कि कहाँ से क्या आ रहा है, भाई मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गया, मेरा सर दर्द जा ही नहीं रहा, मेरा पेट दर्द जा ही नहीं रहा, मेरा बच्चा रोए जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया, मेरा बच्चा पढ़, मतलब द रिपीटेटिव पैटर्न which suddenly occurs, that is the problem which the negative elementals has created in your aura. Now, what is this course is all about? This is all about studying about your aura. This is all about scanning about your aura, because जब तक आप स्कैन नहीं करोगे आपको नहीं समझ में आएगा कि आपने शील्ड किया या नहीं किया. और सिर्फ आपका ऑरा नहीं शील्ड करना सिखाऊंगी, मैं शील्ड करना सिखाऊंगी आपकी गाड़ियों को, चीजों को, आपके घर को, आपके बिजनेस को, कुछ मतलब ऐसी चीजें जिसके ऊपर आपको लग रहा है भाई नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी. सो वो थॉट फॉर्म को निकालने के लिए शील्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज यू नो व्हाट, हमारे लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, बट हमारा जो सबकॉन्शियस पैटर्न ऐसे ट्रेन हुआ है कि पूरी दुनिया के लिए हम इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया हम पे नजर लगाएगी, पूरी दुनिया हम पे काला जादू करती है. So that is again what we have to work on it. So if somebody is very much angry, उसके बारे में कैसा होगा, आप ये पिक्चर देख सकते हो. एंगर, एंगर ऐसा 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 कलर दिखता है, ये क्लेयरवॉयंट पिक्चर है, ठीक है. एंगर ऐसा दिखता है. कोई डिजायर, मतलब desire can be like anything, even to achieve spirituality can be a desire for many people, but वो desire जब जिद में आ जाती है तो ये ऐसा दिखता है. ओके, मैम दिख नहीं रहा. ये रहा ऊपर, ये रहा, यहाँ पे नहीं दिख रहा है. अब ये रहा. अल्कोहल एंड एडिक्शन, जब अल्कोहल एंड एडिक्शन आती है तो ऐसा होता है. ये इसके बारे में हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे, बिकॉज एडिक्शन इज अगेन अ वेरी बिग चैप्टर, जिसको हील कैसे करना है, और फिर उसको, क्योंकि यू नो व्हाट, ऐसे हर हीलिंग के लिए शील्डिंग इज इम्पोर्टेंट. बिकॉज जब तक आप खाना बनाते हो, ठीक है, खाना बनाने के बाद आप लोग ढक के रखते हो या वैसे ही खुला छोड़ देते हो? हम ढकते हैं ना बनाए हुए खाने को. सुबह अगर बनाया तो दोपहर को अगर वो खाना है तो हम ढक के रखते हैं ना, या ऐसे ही खुला छोड़ देते हो कि भाई चलो सारे कीटाणु आ जाओ, जो भी है आके कर लो. सो अगेन वेन एवर यू डू हीलिंग, आपका ऑरा प्रोटेक्ट होना चाहिए थ्रू शील्डिंग. इट्स लाइक खुला हुआ बिल्कुल सामान, कोई भी आ जाएगा, कुछ भी करेगा आपके ऑरा के साथ. देन आप सोचते रहोगे कि भाई क्यों हो गया मेरे साथ. ओके, so this is like calcified thought form, materialism, selfishness, greed, worry, dishonesty. सबका colors and shapes and sizes are totally different, right? I will teach you how to scan these negative energies during this journey. तभी हम शील्डिंग की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है कि भाई कितने हैं, तो आप शील्डिंग कैसे, मतलब ऐसे ही नहीं कर सकते. यू क्रिएट अ थॉट थ्रू, कैसे को आप थॉट कैसे क्रिएट करते हो, जैसे इस वेबिनार में आना है मुझे, इतने लोगों को ये लिंक मिला, बट देन आपको क्यों लगा कि इस वेबिनार में आना है? कुछ तो सोचा होगा ना पहले ही. तो दैट इज अ डिजायर, ठीक है, दैट इज अ एम्बिशन. कुछ मेरे स्टूडेंट्स है जो मेरे से इतना प्यार करते हैं कि उनको करने का मन है मेरे से, तो दैट इज अ लव बिटवीन मी एंड माय स्टूडेंट्स, राइट? दैट इज अगेन लव एनर्जी. सो कुछ लोग हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ बढ़ना चाहते हैं, लाइक एंगर, फियर. हमारे पास जब पेशेंट आते हैं, अलग अलग तरीके के इमोशंस वो निकालने चाहते हैं, बेचारों को पता भी नहीं होता क्या इमोशन से फंसे हुए, राइट? सो इरिटेशन, एनी नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट फॉर्म, उसका एक शेप, साइज एंड कलर होता है हमारे ऑरा, ठीक है. एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेगेटिव थॉट्स आर देयर?
देयर आर मेनी टाइप्स, बट कुछ चीजें हमने लिस्ट आउट की है यहाँ पे, लाइक वीकनिंग थॉट्स इज लाइक ये काम करूं या ना करूं, दिस डिलेमा कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए. एग्रेसिव थॉट इज लाइक, वो तो नाम से ही आपको पता लग जाएगा. स्नॉबिश थॉट, रेसिस्ट थॉट्स, एनस्लेविंग थॉट, वायलेंट थॉट, ये सब एक अलग अलग थॉट्स हैं जिनके साथ हम डील करेंगे एंड जिनको हम स्कैन करेंगे, जिनको हम निकालना सीखेंगे, बिकॉज ये सब थॉट मेजरली सबके अंदर होते हैं. साइकिक पोल्यूशन एंड साइकिक कंटामिनेशन, ये दो चीजें ऐसी हैं. दिल्ली इज हाईली रेटेड पोल्यूटेड सिटी, राइट, जहां पे मैं रहती, मेरे को बाकी लोगों का नहीं पता, बट इस हाईली पोल्यूटेड सिटी को कैसे बोला जाता है? कुछ तो उसका मापदंड होगा ना, कुछ मेजरमेंट होगा, राइट. वैसे ही हमारे घर पे कितना पोल्यूशन है, कितना कंटामिनेशन है, साइकिक, पता है किसी को? या हमारे अंदर कितना है? क्योंकि देखो, घर इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. जिन्होंने मेरे साथ कलर्स किया है, जिन्होंने, मैंने घर की हीलिंग की है, उसके बाद जो मुझे टेस्टिमोनियल्स अगले दिन मिले हैं कि मैंने पूरे घर को चेंज कर दिया, फर्नीचर चेंज हो गया एक हीलिंग में, ये हो गया, दैट इज ऑल वेरी गुड. बट नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेप कि आपके घर में एक्चुअली कितना साइकिक पोल्यूशन है, कितना साइकिक कंटामिनेशन है जिसके अंदर आप रह रहे हो. और फिर आप पूरे अपने एरिया को बोल रहे हो कि यहाँ पे बहुत पोल्यूशन है, यहाँ पे वो एयर क्वालिटी टू मच, बट एक्चुअली हम लोग उसके अंदर ही है, चाहे कहीं पर भी हो, राइट. आई विल टीच प्रिंसिपल ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑल्सो. ओके, ये पिक्चर देखिए आप. फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं चल रहे हो एंड आपको लग रहा है कि कोई, मेजरली बहुत लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि हमें पता लग जाता है कि उसका एनर्जी कैसा है, वो हमारा एनर्जी सक कर रहा है, ले रहा है, या वो बड़ा प्यार से हमें प्यार कर रहा है. इतना तो हम लोगों में इतनी मेच्योरिटी हो गई है, कोई इतना बच्चा नहीं रहा. इनफैक्ट बच्चास आर मोर मेच्योर्ड देन अस, क्योंकि आपको ना कहीं पर भी एनर्जी अगर फील करना हो ना, तो छोटे बच्चों को ले जाइएगा. वो जितना क्रैंकी और जितना प्रॉब्लम करेगा ना, दैट मीन्स दैट एनर्जी इज नॉट गुड. किसी के गोदी पे जाता नहीं है, कोई कोई लोगों के गोदी पे बच्चा जाता नहीं है. दे आर मोर सेटलर देन अस. हम लोगों के अंदर इतना थॉट हो गया कि हम लोग वो डिसर्न नहीं कर पा रहे हैं कि भाई अच्छा यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे खराब है. बट फिर भी हम लोगों को इतना पता लग जाता है कि हमारी तरफ कौन अच्छी नजर से देख रहा है या कौन गंदी नजर से देख रहा है. In this entire course, we will deal about types of negative attacks. What are the types of negative attacks जो हमारे साथ होता है? Is it only कि हमारे पड़ोसी ने आज हमें देखा, हम नया फर्नीचर ला रहे हैं और वो हमारे साइकिक अटैक कर रहा है, या कुछ और है, या कोई और है, कोई और भी हो सकता है ना? So what is the negative programs जो हमारे अंदर infuse किया गया है? What are the curse which we are dealing? क्या ये वूडू डॉल्स पिक्चर के साथ खेलना, आपके पिक्चर को रख के कुछ करना, ये सब है, ये आपके साथ हुआ है एक्चुअली, वो भी हम देखेंगे. ओके. मेंटल डोमिनेशन इज ऑल्सो अ साइकिक अटैक. अगर कोई आपको कंट्रोल कर रहा है बहुत ज्यादा, जिससे आपका इनर पीस जा रहा है, दैट इज अ साइकिक अटैक. व्हाट इज साइकिक अटैक? जिससे आपका इनर पीस, शांति से नहीं बैठ पाते हो, ठीक है. Psychic attacks from black magicians and sorceries, we will work on it. Then I will teach you how to balance your law of karma, because law of karma is again a detailed thing जिससे हम हर चीज को कर्मा बोल देते हैं. अच्छा तेरे साथ ये हुआ, इट इज अ कर्मा, तेरे साथ ये हुआ, इट इज अ कर्मा, बट एक्चुअली है क्या ये कर्मा? हम उस बारे में भी we will read about it. And yes, I will teach you few postures जिसको हम
अभी भी कर सकते हैं। ओके, मैं आप लोगों को ना 1 मिनट का ब्रेक दूं। मेरे को ना एक आई डोंट नो कितने लोग घर पे हैं या क्या है, आलू तो सबके घर में होगा, एक आलू लेके आइएगा अगर आप लोग घर पे हैं। यस मैम, यस मैम की साबुत लेना है या काटना है उसको? नहीं नहीं, काटना नहीं है मुझे साबुत चाहिए, काटना नहीं, मुझे सब्जी नहीं बनानी। मिल है। मैम आ गया। ओके, रख लीजिएगा, अभी मैं बताती हूँ क्या करना। ओके, और क्या हम पढ़ेंगे इसमें, मैं आपको एक थरो थियोरी बता रही हूँ। वैसे हाउ टू स्कैन योर ऑरा वो तो मैंने बोल दिया था। हाउ टू क्लोज योर ऑरा, ओके, वी कैन क्लोज आवर ऑरा ऑल्सो, जो सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा वी हैव क्लोज्ड। यू नो अनकॉन्शियसली आप लोगों ने भी बहुत बार आगे से नोट करना, अब भी नोट नहीं किया होगा, तो जब कोई कुछ बोलता है व्हेन यू आर नॉट इंटरेस्टेड, उसके बाद आपको सुनना नहीं है, तो आप ऐसे ही कर लेते हो, आपका हाथ ऐसे हो जाता है, ऐसे unknowingly, right? So this is again closing your aura, half closing your aura, कि मुझे भाई I am not interested in your conversation. You are actually telling that through your gesture. Okay? एनर्जी वैम्पायर्स के साथ कैसे डील करेंगे? नॉन रिएक्शन टेक्निक क्या चीज होती है, and how can you bless and transmute this negative energy, and how can you heal your relationship through blessings and other things. How to strengthen your aura by crystal. आज हम इसको थ्रू क्रिस्टल ऑल्सो, बट मैं आज क्या सिखाने वाली हूँ आपको, हाउ टू चार्ज योर एनीथिंग अदर देन क्रिस्टल, एनी कद्दू या लेमन या क्रिस्टल या पोटैटो, कोई भी ऐसी चीज, इससे भी आप चार्ज करके अपने कमरे में रख सकते हो, एंड विद इन 7 days आपको पता लग जाएगा कि कोई नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है। ओके, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली पिछले वेबिनार में इंटरेस्टिंगली ऐसे ही कुछ हुआ था इन आकाशिक ऑल्सो, बट इस बारी आई विल टेक 7 days टू गिव यू रिजल्ट। ओके, सो 7 days या उससे भी पहले आपको पता लग जाएगा आपके घर पे कुछ नेगेटिव एनर्जी होगी, तो वैसे ही वो सड़ जाएगा आलू, उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज हम ऐसे प्रोग्राम करेंगे उस आलू को कि इट विल बिकम अ वैक्यूम जो घर की नेगेटिव एनर्जी को सक करेगा। ठीक है? हाउ टू मेक योर ऑरिक शील्ड। व्हाट इज ऑरिक शील्ड? योर ऑरा का शील्ड। आपके ऑरा का शील्ड कैसे करना है इन अ डिफरेंट वेज। देन शील्डिंग द ऑब्जेक्ट्स, शील्डिंग योर बिजनेस, शील्डिंग योर फैमिली मेंबर्स, या किसी की भी शील्डिंग करनी वो भी कर सकते हैं। Now, what is diversionary technique? Diversionary technique is, सपोजिंग मेरे ऊपर, हमारा तो यूट्यूब में भी हर जगह जाता है, हमारा शक्ल हर जगह दिखता है, हमारे क्लासेस में बहुत लोग आते हैं, आई मीन हम सब कहीं ना कहीं अपनी शक्ल दिखाते रहते हैं। अगर खुदा ना खास्ता किसी को लगे कि भाई ये बहुत ग्रो कर रही है, इसको रोकना है, तो क्या करेगा? कुछ भी कर सकता है, उसकी मर्जी है, पर वो हम कैसे नहीं ले सकते हैं, हमारे तरफ आके वो वापस कैसे जा सकते हैं, बूमरैंग टेक्निक कैसे कर सकते हो आप, वो है ये टेक्निक। ठीक है? वैक्यूम क्लीनर आज मैं कराऊंगी। हाउ टू क्लेंस नॉर्मली थ्रू अगरबत्ती ऑल्सो, वो भी मैं क्लास के थ्रू बताऊंगी, एंड तालिस्मान एक बनाना सिखाऊंगी। देखो मैं सब एनर्जेटिक सिखाती हूँ, मैं ये नहीं बोलती कि तुम पेपर पेन, वो अभी नहीं है। हाँ, तालिस्मान, एनर्जेटिक तालिस्मान कैसे बना के आपके बच्चों में डालना है, आपके बिजनेस में किसी को भी प्रोटेक्शन करने के लिए। एक मैजिक सर्कल भी बनाना सिखाऊंगी।
Okay. After that is all about ancestral. अभी पितृ का जो टाइम आएगा उसमें पितृ दोष पूरा प्रॉपरली हमारे फैमिली ट्री के साथ हमारा डीएनए को कैसे हमें करना है. That is all about generational healing, ancestral healing. And ancestral healing में 7 पीढ़ी लेंगे हम. हाँ, 7 पीढ़ियों में we will again scan. कोई रिपीटेटिव पैटर्न है आपका. फॉर एग्जाम्पल किसी के घर पे बार बार लड़का नहीं हो रहा है या लड़की नहीं हो रही है, दोनों में से कोई भी अगर मिस हो जाता है ना तो बड़ा दिल को वैसा होता है, राइट. तो ऐसा भी है कि बच्चा ही नहीं हो रहा है, या ऐसा भी देखा हमने केस जहाँ पे शादी ही नहीं हो रही है, एक एक पीढ़ी में आके वो रुक गया, ऐसा भी केस आता है. फिर अगर आप बोलो तो ऐसा केस आता है जो मेरे को आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, तो वो पितृदोष वाला जो है उसके बारे में मैं सोच के आपको बता रही हूँ कि कितने सारे केसेस हमने देखे हैं. ऐसा भी केस आता है जहाँ पे फाइनेंशियल डेट, मतलब रोटेशन चलता है, इधर से लेके उधर दे दो, उधर से लेके इधर दे दो, इधर से लेके इधर. कभी वो रोटेशन अगर बंद हो गया फिर तो हो गया. ऐसी पीढ़ियां भी आती हैं. एंड बहुत पेरेंट्स ऐसे आते हैं कि यू नो दे आर लाइक लिटरली या तो हेल्थ इश्यूज पीढ़ी में पीढ़ी भी चल रहा है, या रिलेशनशिप इश्यूज, या फाइनेंशियल इश्यूज, या एक तरह का ना ट्रॉमेटिक इश्यूज भी होता है. क्योंकि आप हमारे जो पूर्वज हैं वहां तक तो वो चेंज नहीं हुआ ना, जो भी है वो तो गुजर गए. बट वो जब गुजर जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि उनके सोल से वो सारा इमोशन और वो सब निकल गया, नहीं. सो whenever they are again repeating that pattern, वो हमारे साथ भी अफेक्ट होता रहता है. That is the DNA, that is the thing, that is the entire lineage which we will look into it. Okay. That is again known as impurities of ancestors, or weaknesses भी बोल सकते हो. And then we will go deep into our Navratri. Okay. नवरात्रि का ऑल दस महाविद्या वाला जो है, सबके टूल्स, सारे देवियों के टूल्स और जितनी भी उनकी शक्तियां हैं, जितनी भी उनकी सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में बात करके उनसे हीलिंग लेके वी विल बी मोर इवॉल्व्ड इन दिस नवरात्रि. वी विल अटेन मोर पीस. व्हाट एल्स, जो भी चाहिए सब मिल जाएगा इस नवरात्रि में, राइट. So now let's get into some work. बातें हो गई, right? So everybody, जिनके पास भी आलू है और जिनके पास आलू नहीं है, वो भी एक हाथ में, मेरा तो इतना बड़ा क्रिस्टल है, बट हाथ में ऐसा ले लीजिएगा. एंड जिनके पास नहीं है वो इमेजिन कर लीजिए कि आपके हाथ में आलू है. उसके बाद आप घर पे जाके एक आलू निकाल के उसको मैं भी जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराऊंगी, या तो आप YouTube देख के कर सकते हो, वापस रिकॉर्डिंग शायद मिल जाएगा, हमेशा फ्लोट होता है रिकॉर्डिंग, राइट. अब वापस करिएगा. क्लोज योर आईज एवरीबॉडी. टेक अ डीप ब्रेथ. Inhale. So you have to keep it like this, okay? Exhale. Inhale. Exhale. जितना ब्रीदिंग करोगे उतना आपका ऑरा स्ट्रांग होता है, उतनी एनर्जी आप इस चीज के अंदर डालते हो. We will do it 7 times, okay? Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale and exhale.
आप और जो भी आपके हाथ में है, यू आर वन विद दैट थिंग। उसको बोलिएगा, आप मेरे अंदर हो, मैं आपके अंदर हूँ, हम दोनों एक हैं। नाउ से, आप मेरे घर पे हो, आपका घर इसके अंदर है। आप मेरे घर पे हो, मेरा घर का एनर्जी आपके अंदर है। आप मेरे घर पे हो, मेरा घर का एनर्जी आपके अंदर है। To the Divine Supreme God, Divine Father, Divine Mother, to my beloved teacher, Master Chow Sui, to all the great teachings, to all the invisible helpers who are present here, to all the angelic kingdom, to all the Akashic kingdom, to all the astral kingdom, to all the mental kingdom, to all the shamanic healers, the supreme healers who are present here, to all the great ones, to all the saints who are there in the Himalayas, who are there in everywhere. We invoke each one of you to allow this object to suck all the negative energies from my house and to expel, transmute the entire energy of my house. Again, do 7 times breathing. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale and exhale. Just visualize it has started its work. Visualize it is sucking all the negative energies which are there in your house, all the thought forms, elementals, entities, psychic attacks, psychic intrusion, psychic contamination, all kinds of negative entities, thought forms, vampires, everything which are floating in your house. And let it suck the entire day. Okay, for 24 hours. Open your eyes and जो हाथ में है इसको किसी सेफ जगह पे रख के आ जाइए ताकि ये अपना काम करे एक दिन के लिए, जहां पे कोई इसको छेड़े नहीं। मैम ओपन स्पेस में रखना है, अलमारी में रखना? कहीं पर भी रखिए पर कोई भी इसको छेड़ेगा नहीं। कबर्ड में वगैरह की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई घर पे ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे कोई छेड़ेगा नहीं। मैंने देखो ऐसे प्रोग्राम करके इधर रख दिया पास में, इधर कोई आएगा नहीं मैम मेरे। मैं अभी स्टोर में हूँ, तो लेकिन जब जैसे आपने बोला वो तो घर के लिए बोला ना, अपने घर के लिए बोला, स्टोर तो के आप लिए तो लेके नहीं जाके बोला उधर है। रख दीजिएगा। अभी आप जाओगे ना घर, हम्म, तो मतलब तब लेके जाके रखने से हो जाएगी ना मैम? हाँ हाँ, थैंक यू मैम। अपने हैंडबैग में डाल लीजिए, जब जाओगे तब रख देना।
वैसे वैसे यू नो व्हाट, मैंने प्रोग्राम कर दिया, वो सिर्फ आपकी घर की एनर्जी सक करेगा। आप चाहे कहीं पर भी रहो और कहीं पर भी जाओ, आई डोंट डाउट अबाउट माई एनर्जी। ओके, तो ये अपना काम शुरू कर देगा एंड 24 आवर्स लगेगा इसको। ओके, 24 आवर्स प्रोग्राम किया है, उसके बाद आप लोग कैसे मेरे को संपर्क करोगे? मुझे नहीं पता, बट ये जो स्टूडेंट्स है वो लोग तो पर्सनल मैसेजेस डाल देंगे। बट हाँ, मंडे से क्लास है, क्लास में आएंगे ना हम। सब बता देना, बिकॉज अगर हमने आज किया है तो कल रात तक आपको उसमें कुछ ना कुछ दाग दरार कुछ तो मिल, अगर है तो। हाँ, किसी ने अटैक किया है तो, नॉट नेसेसरी वो वैसे ही हमेशा होता मैम रहेगा। साबुत में ही अपने आप आ जाएगा या काट के देखना होगा? अबे, काट आपको आलू सब्जी बहुत पसंद है क्या? काटते जा रहे हो? नहीं, अच्छा, काटना नहीं है। फिर उसको डस्टबिन में फेंक देना। मैंने एक्चुअली 7 दिन बोला, बट मैंने एक ही दिन के लिए प्रोग्राम किया। अभी ट्यूशन एक ही दिन का आया। ओके, तो कल आप इस टाइम के बाद यू कैन एक्चुअली थ्रो इट इन द डस्टबिन। ओके, मैम मेरा आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, आप इस टाइम पे ही क्लास रखना प्लीज। मैं आपकी क्लास अटेंड कर पाती हूँ, मैं लाइव नहीं ले पाती। मैम प्लीज। मैम मुझे आपकी क्लास लाइव लेनी होती है, मैं लाइव नहीं ले पाती हूँ। ठीक है, बता दूंगी। वैसे मैंने बात किया था, बट स्टिल एक बार और बता दूं। ओके, मैम मेरा नाम भी जोड़ देना साथ में। मैम सब रेडी है 7:30 आपकी क्लास लेने को उस टाइम पे। आई नो, आई नो। प्रवीण जी ने भी बहुत पिछली बार भी रिक्वेस्ट किया बेचारे ने। आई नो, मैंने बोला हुआ है, फिर से एक बार बता दूं। मैंने And पे कर इस बार, दिया ओ हाँ, मैंने पे कर दिया, क्या जल्दी भी होगी मैं सुनाई नहीं दे रहा, आपका वॉइस इको हो रहा है। मैंने कह रही हूँ मैंने पे कर दिया, चाहे जब भी होगी मैं तो हूँ। अच्छा अच्छा, पे कर दिया, वो कभी भी होगे मैम। नम्रता जी हैं। ओके फाइन, थैंक यू नम्रता जी। ओके, एक और एक्सरसाइज फॉर माय फेवरेट पितृ। ओके, ठीक है, क्लोज योर आईज एवरीबॉडी। हमें देखो किसी पितृ का नाम नहीं पता, मैं अभी बता देती हूँ, किसी को कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वी विल कॉल, वी आर जस्ट कॉलिंग द एनर्जी एंड वो आएंगे। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ। जितना ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे ना, उतना यू विल फील लाइट। सो डू 7 मोर ब्रीदिंग, अपने आप कीजिए आराम से। मैं भी कर रही हूँ। Okay. Now sit quietly. Sit quietly in front of a river. विजुअलाइज आपके सामने बहुत ब्यूटीफुल सा एक रिवर है या बीच है, आप वहां पे शांति से बैठे, बहुत शांति से बैठे। बिकॉज जितना आपका माइंड शांत होगा, उतने आपके एंसेस्टर्स मिलने आएंगे आपसे। नाउ कॉल योर फर्स्ट एंसेस्टर। आपके जो पहले पूर्वज हैं, उनका एनर्जी को बुला रहे हैं हम। एंड हाथ जोड़ के लेट्स आस्क फॉरगिवनेस। थैंक यू for giving me
your DNA. Thank you for giving me this body. Thank you for giving me this brain to think. Thank you for giving me all the limbs, physical body. मेरा अच्छे से काम कर रहा है. Thank you for that. Now visualize your ancestors. अगर वो आपको दिख रहे हैं तो now visualize they are in front of you. आपका हाथ जोड़ के I forgive you for all the hurt and pain which you have given me. Now please forgive me for all the pain and hurt which I have given you. Thank you, thank you, thank you. अब उस एंसेस्टर को बोलिए कि सेकेंड एंसेस्टर को बुलाए, आपके दूसरे पूर्वज को. नाउ उनको बोलिए थर्ड एंसेस्टर्स को भी बुलाए जो आपके तीसरे हैं. Visualize your heart is connecting with your ancestors. आपके हार्ट उन सबके हार्ट के साथ मिल रहे हैं. अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, कुछ हेवीनेस लग रही है, तो लेट्स आस्क फॉर फॉरगिवनेस अगेन. प्लीज फॉरगिव मी फॉर ऑल द हर्ट एंड पेन. अगर मेरी तरफ से कुछ गलती हुई है तो प्लीज माफ कर दीजिए. मैं भी आपको माफ कर रही हूँ या कर रहा हूँ आपकी गलती के लिए. थैंक यू. Now ask the fourth, fifth and sixth ancestor to come in front of you. सातवीं तो आप हैं ही. So visualize all the 7 people are sitting in a circle. कोई भी पैटर्न हो आपके फैमिली में, may it be any kind of problem and अच्छा भी, दोनों. If you don't want that pattern कि बार बार रिपीट हो, तो ask your ancestor to release that pattern so that आपकी पीढ़ियों में वो प्रॉब्लम ना आए या आपके अंदर वो प्रॉब्लम ना आए. ओम. Visualize a golden ball आपके सारे पितरों के साथ. ये गोल्डन बॉल उनके अंदर है and they are getting healed thoroughly. उनके सारे पैटर्न्स मेल्ट हो रहे हैं. They are getting transmuted into positive pattern. Now slowly ask your ancestor to go back from where they have come. उनको बोल दीजिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर कमिंग मी. थैंक यू आप लोग आए मेरे बुलाने पे. थैंक यू मेरे सारे फैमिली मेंबर्स, मेरे बच्चों को, उनके बच्चों को, पूरी पीढ़ी को आपकी ब्लेसिंग चाहिए.
पूरे फैमिली को आपकी ब्लेसिंग चाहिए। हम वापस मिलेंगे। थैंक यू। अभी आप जा सकते हैं। थैंक यू। नाउ विजुअलाइज वो लोग बहुत खुशी से अपने जगह से जा रहे हैं, जहां से आए हैं वहीं जा रहे हैं वापस, एंड दे आर वेरी हैप्पी। Okay. Now, whenever you are ready, you can open your eyes with a big, big smile. दीपिका मैडम, मैम अच्छा लग रहा है बहुत। तुम्हारे फेस देख के मैं हंस रही हूँ। तुम्हारा इकबाल जी स्माइलिंग, इनफैक्ट सारे जितने भी वीडियो खोले हुए सबका स्माइल दिख रहा है। ऑसम। मैम यस मैम। ब्लेसिंग फील हो रहा था सच में कि हाँ सच में ब्लेसिंग है कि किसी ने हाथ रखा हो सर पे। दैट्स फील वो मुझे हुआ फील आज। वाह, बताओ, जिसको फीलिंग नहीं होती उसको आज फीलिंग हो रही है। क्या बात है। कोई चलो, हाथ रखा तो हैवीनेस एकदम से लगता है ना, वो फील हुआ आज मुझे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैम आपसे रिक्वेस्ट है, आप है ना ये जो आपने ये फॉरगिवनेस प्रेयर बोला ना, तो ये आप हमको क्लास में प्लीज रिकॉर्डिंग करके भेजना ना, तो हम एटलीस्ट डेली फॉरगिवनेस की हाँ, प्रेयर करें। यस, नीना जी ने भी बोला था ना उस दिन। यस, एक्चुअली इसमें इतनी सारी चीजें होंगी ना। ठीक है, मुझे मेडिटेशन में रिकॉर्ड करके भेजूंगी, इस बार तो हाँ भेजूंगी। मैम मेडिटेशन स्पेशली वो जैसे आप ये फॉरगिवनेस प्रेयर दी, तो ये प्रेयर हमको भेज देना, हाँ, तो हम एटलीस्ट डेली 2-3 दिन में एक दिन तो कर सके। ठीक, नो इश्यूज, करूंगी। थैंक यू मैम। ओके, मैं एक बार आप लोगों को ये शेयर करूँ। कोई क्वेश्चन है किसी का तो प्लीज आस्क। नमस्ते मैडम। जी, मैडम ये जो मेडिटेशन है इसको हम रेगुलर करने से उतने में सफिशिएंट है ना मैडम? पितृ मतलब खुश हो जाएंगे या उनका ब्लेसिंग हमको प्रॉपरली मिल जाएगा? पर ये एनर्जी है सर। आई कांट टेल यू कि भाई आपके पितृ कैसे खुश होंगे, बिकॉज दिस इज अ जर्नी जो हम कवर करेंगे ड्यूरिंग दिस पितृ पक्ष। ओके, मैं कोई नहीं हूँ बोलने के लिए आपके एंसेस्टर्स को। मैं कोई नहीं हूँ कि आपके पितरों को कैसे खुश करेंगे। आई एम जस्ट ट्राइंग कि आप लोग उस एनर्जी के साथ मिलो और आपको ब्लेसिंग मिले। बट यस, मेरे भी पापा मम्मी नहीं है, तो मैंने उनको उनके साथ भी ऐसी रीडिंग करती हूँ, तो मैं आपको भी ऐसी सिखा रही हूँ। एंड आई होप कि अच्छा, एक्चुअली काफी ब्लॉकेजेस ओपन करती है जो मैंने खुद ने देखा है मेरे लाइफ में, तो वही पैटर्न मैं आपको सिखा रही नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगा मैडम, हूँ। और एक अंदर से एक सुकून फील हुआ ये करके हाँ, अभी। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मतलब ये पितृपक्ष में हमको करना है या साल भर कर सकते हैं जब हमको मन लगे? ये आप एंसेस्टर्स को ना बार बार नहीं बुलाते हैं, बिकॉज उनको तंग करने वाली बात हो जाती है। आप बार बार थोड़ी किसी को फोन करके बुलाते रहोगे, रोज थोड़ी राइट, हाँ। बुलाते। तो इट्स लाइक दैट। तो ये स्पेशली मतलब कितने दिन में करने से ठीक रहेगा? उसके लिए अलग सा जो तिथि है, जैसे अमावस्या है या पितृपक्ष है, उनका जो तिथि है जिनमें वो अवेलेबल है, इट्स लाइक हम लोग व्हाट्सएप में डालते हैं ना, हम अवेलेबल, वैसा वैसा करोगे तो उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगा, हमें भी नहीं होगा, है ना। वरना ठीक। बार बार बुलाने से फिर हमें भी प्रॉब्लम हो जाएगा। हमारी जिंदगी में कोई डेड सोल ही है वैसे भी देखा जाए तो, बार बार बुलाने से फिर प्रॉब्लम तो करेंगे, ज्यादा अटैचमेंट हो जाएगी, है राइट। ना। हम्म। और कोई सवाल?
ओके, मैं ये शेयर स्क्रीन कर रही हूँ जिसमें आई थिंक मेजरली मैंने आपको कोर्स कंटेंट बोल दिया, ये सिर्फ छोटा सा जिस्ट है। हाँ, इसमें मैं वायलेट फ्लेम तर्पण कराऊंगी। वायलेट फ्लेम के ऊपर हम काफी हीलिंग करेंगे। शील्डिंग के बारे में तो मैंने सब कुछ बोल दिया आपको, नवरात्रि बोल दिया, यंत्र भी बोल दिया। वायलेट फ्लेम और एनिमल्स, बिकॉज मैं शैमानिक हीलर हूँ, तो एनिमल स्पिरिट्स के साथ भी हम शील्डिंग करेंगे और उनके साथ भी हीलिंग करेंगे। ठीक है, आज वो नहीं आई ना, उसका नाम क्या, जिसने ये एक्चुअल में रिक्वेस्ट किया था कि भाई ये चाहिए मुझे, क्या नाम था उनका, खुशांगी है ना? कोई नहीं, वो यूट्यूब देख ले। बट दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स कंटेंट एंड दिस इज द फीस। फीस नहीं, हाँ दिस इज द फीस। अच्छा, ये जो सेशन है ये मंडे, वेंसडे एंड संडे होगा 5:30। इसमें संडे ऐड कर दूंगी। बाकी तो 7:30 प्लीज। हाँ, वो मैं बात करती हूँ। बाकी फीस कंटेंट ये है। फीस ये है 2650 रुपये। नयों के लिए है 3158। मैम ये क्लास कब से स्टार्ट होने वाली है? इस मंडे से जी, कमिंग मंडे, बिकॉज इसके बाद और भी अपकमिंग कोर्सेज आ रहे हैं, तो वो स्केड्यूलिंग बड़ा टाइट है। ओके, थैंक यू मैम। ओके, हाँ जी सरला जी बताइए। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। हाँ मैम, मुझे आलू को जब मैंने पकड़ा हुआ था तो मुझे लग रहा था कि आलू अंदर से अभी से खींच रहा है मेरे हाथों से कुछ। दैट इज बेसिकली मैंने उसको क्या बनाया है, वैक्यूम। वो नहीं होता क्या, यूरोक्लीन वैक्यूम वाला, ऐसे सक करता है, वो करेगा। और हाँ, जो है मेरे घर में भी ना ऐसे दरारें आती है ना, टेढ़े, हाँ वो बनने के तुरंत बाद ही आ गई थी। हाँ जैसे कहते ना हाई लगती है, हाँ तो ऐसे मुझे लग रहा है कि हम पूरा फैमिली पे, काम पे, सब हाँ पे ना, क्योंकि भगवान जो है ना होते हुए भी थोड़ा आगे बढ़ाता रहता है। हाँ क्योंकि मेरे और हस्बैंड में जो है, मैं अपने हाँ मुंह से नहीं कह सकते, बट हाँ, हमारी इंटेंशन प्योर है सबके लिए। हम्म, हम्म, तो गॉड गिफ्ट धीरे धीरे हमें मिल रहा है, जैसे भी है। तो बट जो है फिजिकली जो है, मेरे हस्बैंड जो है काफी लंबे टाइम से ऐसे कभी कुछ लगा हुआ रहता है। हम्म, तो और अभी जैसे मैं आप लोगों की क्लास ज्वाइन करती हूँ या करने की कोशिश करती हूँ, तो कोई ना कोई हर्डल आ जाता है। चाहे और कुछ नहीं तो कोई पड़ोस वाली जो कभी इस टाइम आई नहीं है, वो आके कुंडी खड़काएगी। जैसे मुझे लगा था कि आपने जैसे कहा था कि ऐसे करिए, तो इतनी देर में पड़ोस में मेरे बच्चे की तबीयत खराब होगी, दवाई दे दो। ओके। बट मेरे ये यहाँ से हैवीनेस महसूस हो रही है। अब जैसे गुद्दी अभी पकड़ी तो जाती है ना, पीछे- ये पकड़ी जाती है ना, ऐसे पकड़ी जाती है, तो ये क्या है ये? ये क्या है? बहुत कुछ हो सकता है, वही सीखेंगे हम कोर्स में। सिर्फ एक चीज थोड़ी होगा, ये क्या है इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब मेरे को इतना सारा आंसर देना पड़ेगा। आपका आलू बोलेगा क्या है। अच्छा। हाँ, यही मैं जानना चाह रही थी कि ये आलू बता देगा कि ये क्या है, हाँ? हाँ, मैंने अपने हस्बैंड से भी आलू रखवाया है आज। अच्छा ओके, ठीक है। तो इन्होंने लेटे लेटे ही किया। इस समय इनका कमर में इतना दर्द रहता है, पेन की जॉब करना भी मुश्किल हो जाता है इनको। तो ये लेट ही जाते हैं आके, तो मैंने कहा लेटे लेटे करिए, मैं मैडम को बता दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं। भी वी आर जस्ट डीलिंग विद द एनर्जी। ठीक है। मैम, जो है ये मंडे से टाइमिंग आपका जो है, ये 5:30 वाला तो मुझे भी सूट नहीं करता, मैं करना चाहती हूँ बट देखिए,
जिसके जो किस्मत में है उतना मिलेगा। मैम 7:30 प्लीज मैम, तो बहुत लोग रेडी है 7:30 को। अरे ठीक है दीपिका, बोल दिया, मैं भी ऐसी ही रहूं राजीव सर के सामने, सर प्लीज, नहीं सर प्लीज, सर प्लीज सर। बट कुछ होगा नहीं। मैम आपके स्टूडेंट 7:30 चाहते हैं इसलिए। मैं क्या करूं, आई एम जस्ट डूइंग माई जॉब। आई विल कन्वे योर मैसेज, ओके। फिर मैम, क्योंकि उसी समय फिर खाना वाना बनाना होता है। ये सवेरे 2 ही टाइम खाना खाते हैं, मॉर्निंग में 9 बजे और इवनिंग में। बीच में कुछ नहीं लंच ब्रेक करते, तो फिर खाना बनाने के लिए 1 घंटा तो चाहिए। चैट में एक लिंक भेजा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो यू कैन ज्वाइन देयर। कर लिया है मैम, वो लिंक ज्वाइन किया है। ओके, एनी फर्दर क्वेश्चंस? मैम आपका सेशन बहुत अच्छा other than timing. नहीं, आपका सेशन बहुत अच्छा रहता है और आज ये बहुत अच्छा फील कराया आपने। हार्डली थैंक यू। Thank you. आप जैसी नारी शक्तियां जो हैं इस समाज में हैं और हम लोगों के बीच में, बहुत खुशी होती है। और इतना दिव्य ज्ञान आप लोगों को इतनी कम उम्र में मिल गया है, तो हमें लगता है कि हम तो कहीं अंधेरे में ही भटके हुए थे अभी तक। ऐसा बिल्कुल नहीं, आप हम सब वही इनफाइनाइट सोल है, ऐसा बिल्कुल नहीं। सर नमस्ते। नमस्ते जी। क्या हो गया, आज हाथ जोड़ के ऐसे ऐसे बैठी है तो मुझे लगा क्या हो गया। आज हो जैसे मुझे क्या मिल गया हो, 5 किलो रसगुल्ला मिल गया इनको। क्या हो गया, कुछ नहीं। ज्यादा खुशी मिल गई। जो वो उनका जो उन्होंने बोला ना, वो बोला हुआ अच्छा लगा बहुत। सल्ला जी का, हाँ, हम्म। दिल से जो दुआ निकलती है ना वो बहुत है, वही फीस है हमारी। थैंक यू। सो शैल वी क्लोज द सेशन, या कुछ और पूछना है आप लोगों को? आप लोगों को पूरा डिटेल पता चल गया ना इस सेशन के बारे में? कुछ आपको क्वेश्चंस है? जी, बिफोर क्लोजिंग आई वुड लाइक टू से समथिंग, अरे सर, अगर आपको आपकी इजाजत हो तो। हाँ जी सर, बिल्कुल, प्लेटफॉर्म लीजिए। दीपिका, ओपन योर माइक प्लीज। थैंक यू, नमस्कार आप सब लोगों को। सर मैंने नमस्कार आपको सर। नमस्ते की। सर हमारा क्वेश्चन टाइमिंग को लेकर है सर, टाइमिंग 7:30। नमस्ते सर। नमस्कार सबको, हाँ नमस्कार। सर, 7:30 जरूरी है सर, दिक्कत होती है 5:30 में बहुत ज्यादा। सर 5:30 नहीं पॉसिबल हो पाता। आई हैव टू चेक द शेड्यूल, कैन नॉट कंफर्म यू राइट अवे बिकॉज वो शेड्यूल चेक करना पड़ेगा, उसके लिए क्या अवेलेबिलिटी है। बट अगर कोई अवेलेबिलिटी होगी तो डेफिनेटली वी विल डू इट। बट मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि पितृ, और क्योंकि पितरों का टाइम में पितृ, और पितरों के बाद नवरात्रे, नवरात्रों के टाइम में नवरात्रे, ये दो एक ऐसी एक्टिविटी है जीवन में ना हर इंसान को आनी चाहिए और इस समय में करनी चाहिए, क्योंकि पितृ इस समय में एक्टिवेट होते हैं। अगर आपने ये एक्टिविटी सीखी, जानी और करी, तो आपके जीवन की अपने आप में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को निकाल पाएंगे। और इस नकारात्मक ऊर्जाओं को निकालने के बाद भगवान ने डिजाइनिंग ही ऐसी करी है, इसकी इमीडिएट बाद नवरात्रे हैं। अब नकारात्मक ऊर्जाओं को हटा के हाउ टू बिल्ड अ पॉजिटिविटी बिटवीन इनसाइड यू, माता की कृपा कैसे उसको प्राप्त करें, वो साथ साथ है बैक टू बैक। सो ये एक कॉम्बिनेशन है पितृ और नवरात्रि का। अगर आप इसको समझते हैं, जानते हैं, इस पे अमल करते हैं, इसको प्रैक्टिस करते हैं और इस पीरियड में ये एक्टिविटी करते हैं, इट विल बी वंडरफुल फॉर यू। विल लॉट ऑफ हीलिंग एक्टिविटीज विल कम, और एक्चुअली इट्स अ हीलिंग है। पितरों की ब्लेसिंग्स, पितृ हमारे ग्रोथ के कारक है, पितृ हमारी शक्ति भी है। उनकी नकारात्मक ऊर्जाओं को हटा के सकारात्मक ऊर्जाओं में कन्वर्ट करना ही एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और ये टाइम राइट टाइम है। अगर आपने इस टाइम पे ये एक्टिविटी करी, इसका फल बढ़ जाता है। आगे पीछे जीवन में कभी भी कर सकते हैं, इसका कोई ऐसा नहीं है, बट ये टाइम में पर्टिकुलरली पित एक्टिवेटेड है। तो मेरा आपको यही सजेशन होगा, वी विल ट्राई टू फाइंड बेस्ट टाइम, बट इररिस्पेक्टिव द टाइमिंग, डू इट। क्योंकि इसके बाद आपने हीलिंग के नहीं, नवरात्रि साथ साथ है,
ऐसा कनेक्ट नहीं मिलेगा, ऐसा अमेजिंग सिस्टम डिजाइन। और फॉर द बेस्ट पार्ट इज दैट संगीता जी के साथ शी इज अ मास्टर फॉर हीलिंग। नमस्कार जी, शी इज अ मास्टर फॉर हीलिंग। और इससे इनसे अच्छा तो आपको हीलर इस सब्जेक्ट पे नहीं मिलेगा, क्योंकि यू ऑल हैव लर्न मैनी सब्जेक्ट ऑलरेडी विद हर और अदरवाइज आल्सो। कुछ सब्जेक्ट में ना कई लोगों की बाय डिफॉल्ट ब्लेसिंग्स ग्रिप होती है। अगर ये सब्जेक्ट पितरों पे अगर मैं कहूँ, शायद मेरा ग्रिप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ जितना संगीता जी का हो। तो ये हर एक की अपनी डेस्टिनी डिजाइन है, देयर इज नो रॉन्ग एंड देयर इज नो राइट। तो इस संगीता जी का इस सब्जेक्ट पे। और अनदर थिंग, हीलिंग की एक्टिविटी एकेडमी में बहुत सारे लोग करते हैं, कई फैकल्टीज करती है। व्हाई आई चूजन संगीता जी, देयर शुड बी अ रीजन फॉर दैट, could have been done otherwise many other faculties there. So पित्र और नवरात्रि को इन्हीं को क्यों दिया, बाकी सब फैकल्टी के पास भी ऑप्शन है। So there is a reason. We are not getting into the reason, but मैं यहाँ मैसेज देना चाहूंगा कि ये पार्ट इनसे बेस्ट आपको कोई नहीं करवा पाए। And rest assured, we will do the best possible assistance wherever possible. टाइमिंग्स को लेके, डेज को लेके। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो शायद कई बार नहीं हो पाती, बिकॉज 7:30 बजे की स्लॉट में कई क्लासेस ऑलरेडी चल रही होंगी, 9 बजे के स्लॉट में चल रही होंगी, जो चल रही होंगी उनमें आप एनरोल भी होंगे किसी किसी जगह पे। तो हर चीज डिस्टर्ब करना मुश्किल होगा, बट आई विल ट्राई, स्टिल ट्राई। तो मेरा यही मैसेज आपको था। धन्यवाद आपका इस समय को मुझको देने के लिए। संगीता जी आपका धन्यवाद, आपने मुझे ये समय दिया। थैंक यू सर। Thank you, थैंक यू, sir. थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। संगीता जी, यू विल कंटिन्यू प्लीज। ठीक है सर, ओके। एनी फर्दर क्वेश्चंस, सेशंस? नो, हैप्पी? किसी को कोई भी जानकारी चाहिए ना, ग्रुप लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। जो लोग नए पार्टिसिपेंट्स हैं, फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं, जो एग्जिस्टिंग है उनको पता है, फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेंट प्लीज ज्वाइन ग्रुप लिंक्स सो दैट दे कैन इंटरेक्ट विद द एकेडमी। प्लीज ज्वाइन इट। थैंक यू, थैंक यू आसुका, नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. Sir, namaskar. संगीता जी की क्लास आपको एंड करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, हो गया सर। चलो, बाय एवरीबॉडी, सी यू ऑन मंडे 18th। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। बाय। एंड फॉर ऑल आपको करना पड़ेगा। हाँ, मैं करती हूँ। थैंक यू, नमस्कार। Thank you, sir. Namaskar. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, sir. Learn how to deal with negative energies, how to shield ourselves, our family members, our business, our car, bike, सब कुछ we will shield, and अपनी एनर्जी को और कैसे बढ़ा सकते हो वो भी सिखाऊंगी, स्पिरिचुअल एनर्जी। ओके ओके, बाय। बाय। थैंक यू, नमस्कार। Okay, ma'am. Thank you.